Assalamu alaikum to everyone. I'm here once again with a new lecture and a new topic in front of you, and this is lecture number 6. And your subject is language studies. I do hope that you all are doing well and enjoying your vacations, and you know, and studying very hard for your examination because they are around the corner as well. So let's see what is our today's topic. So today's topic is morphology. Um, One thing that I'm going to tell you today is this topic is very important according to your exams. It can be presented in your exams, and I do wish that you all will study this very hard and learn new things with this topic that is very important and key for for your exams as well, your study and your degree as well. So let's see how it goes. Morphology in linguistics. On the study of structure of the words and word formation. Morphology, morphemes, there are different types of that, free morphemes and bound morphemes. Obviously, we will study on the next slides. And the word structure for morpheme, free morpheme, lexical and functional, bound morpheme, intellectual derivation and contractible morphemes. So मैं आपको थोड़ा और पहले बताता हूँ इसके morphology है क्या. Obviously this slide doesn't really tell you what is morphology is. So the morphology is the study of words. Morphemes are the minimal units of the words that have a meaning and cannot be subdivided further. So there are two main types, free and bound. Free morphemes can occur alone, and bound morphemes must occur with another morpheme. An example of a free morpheme is bad, and an example of a bound morpheme is ly. So it is bound because although it has meaning, it cannot stand alone. It must be attached to another morpheme to produce a word. सो मॉर्फोलॉजी जो है एक्चुअली वो स्टडी है वर्ड्स की, और जो मॉर्फीम्स है वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वर्ड का, किसी भी लफ्ज का, जो कि उसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते. सो दो तरह की होती हैं मॉर्फीम्स. एक तो होती है फ्री होती है और दूसरी होती है बाउंड. सो फ्री ऐसी होती है जो अकेले स्टैंड कर जाए और उसका मतलब क्लियर रहे, और जो बाउंड होती है वो दूसरे पे डिपेंड कर रही होती है एक वर्ड बनाने के लिए. आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे फॉर्म फ्री मॉर्फीम, जैसे कि एक वर्ड है बैड, BAD, बैड, ये मैं इसको कहूँगा फ्री मॉर्फीम है. एंड दूसरे अल्फाज में अगर बाउंड मॉर्फीम में लूँ तो मैं ly ले लेता हूँ, तो उसको मैं बाउंड मॉर्फीम कहूँगा. इट इज बाउंड बिकॉज ऑल्दो इट हैज मीनिंग. तो बाउंड है ये, इस किसी के साथ मिलकर ही वर्ड बनाएगी. जैसे वो बैड है, उसका मतलब हमें पता है बुरा होता है. ly कैन नॉट स्टैंड अलोन, तो हम इसको जब मिला दे BAD ly, तो ये बैडली बन जाएगा. तो इसका मतलब है ly जो था वो बाउंड मॉर्फीम था बैड के ऊपर, तो वो बैडली बन गया. तो इसलिए मॉर्फीम जो बाउंड होती हैं वो दूसरे किसी वर्ड के साथ मिलके ही दूसरे लफ्ज बनाती हैं. सो होपफुली आपको ये अब कॉन्सेप्ट समझ आया होगा. एंड मॉर्फीम्स, व्हाट आर मॉर्फीम्स? जैसे कि आपको पहले दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट इज मॉर्फीम, एंड द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन द ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज. सबसे छोटा यूनिट होता है. एंड फ्री मॉर्फीम, as I have told you little while ago, that the type of morpheme that can stand alone as words by themselves, वो अकेला स्टैंड कर सकता है और उसका मतलब भी होता है. So example, friend, boy, tree. So free morphemes have two categories. अब इसके ऊपर आप फ्रेंड, बॉय, ट्री, आप ये फ्री morphemes हैं, आपको अकेले वो स्टैंड कर रही हैं, आपको मतलब उसका पता लग रहा है. एंड फर्दर वी डिस्कस दैट फ्री मॉर्फीम्स हैव टू कैटेगरीज. अब इसकी दो कैटेगरीज आप देखेंगे आगे. दे आर लेक्सिकल फॉर मॉर्फीम्स.
So referred also are open class because we cannot add morphemes to these words. These are nouns, verbs and adjectives. तो लेक्सिकल मॉर्फीम्स का मतलब यह है कि ये ओपन क्लास होती है, इसमें हम कोई भी दूसरा वर्ड ऐड नहीं कर सकते. Here, जो इस फॉर्म में लेक्सिकल फॉर्म में बिकॉज वी कैन ऐड मॉर्फीम्स इन दी टू द वर्ड्स, हम इसमें जो है वो ऐड कर सकते हैं मॉर्फीम्स, लेक्सिकल फॉर्म मॉर्फीम्स में दूसरे लफ्ज ऐड कर सकते हैं. ये फ्री भी हो सकती हैं, बाउंड मॉर्फीम भी हो सकती हैं. दीज आर नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स. तो ये ओपन क्लास में क्या क्या चीजें आती हैं? नाउन्स भी आते हैं, वर्ब्स भी आते हैं और एडजेक्टिव्स भी आते हैं. एग्जाम्पल क्या है? गर्ल, you all know that it is noun, and jump, as you all know, it is verb, and red, obviously it is an adjective, and boy is a noun, look is verb, and pink is adjective. So next further मैं आपको बता चलो, when we talk about words there are two groups, lexical and content and functional or grammatical words. Lexical words are called open class words and include noun, verb and adjective and adverbs, and new words can regularly be added to this group. Function words are closed class words are conjunctions, prepositions, articles, pronouns, and new words cannot be added to this class. Affixes and are often the bound morphemes. This group includes prefix and suffix and infixes and circumfixes. Prefixes are added to the beginning of uh, the word morpheme. Suffix are added to the end, and infixes are inserted into other morphemes, and circumfix are attached to another. थोड़ा सा मैंने आपको फर्दर बता दिया नेक्स्ट स्लाइड पे जो आने वाला है. अब लेक्सिकल मॉर्फीम में आपको मैं बताता चलूं कि ये ओपन क्लास होते हैं जिसमें नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब आते हैं और रेगुलरली आप इसमें नए वर्ड्स ऐड करते रहते हैं. नेक्स्ट है फंक्शनल मॉर्फीम. Words that do not have clear meaning but has grammatical functions. These are conjunctions, preposition, articles, auxiliaries and pronouns, referred as a closed class because it cannot be added to other morphemes. अब फंक्शनल मॉर्फीम मैं बताता हूँ, इसको क्लोज्ड क्लास कहते हैं. जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पढ़ा लेक्सिकल, उसमें ओपन क्लास था तो उसमें वर्ड्स ऐड किए जा सकते हैं. ये क्लोज्ड क्लास है, इसमें वर्ड्स ऐड नहीं किए जा सकते. तो इसमें क्या आता है? कंजंक्शन होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, prepositions होते हैं, एक्सिलरीज होते हैं, प्रनाउन होते हैं. एग्जाम्पल उसकी क्या? ही, शी, वी, बट, नॉट. तो इसमें ऐड नहीं किया जा सकता. इसको क्लोज्ड वर्ड कहते हैं, क्लोज्ड क्लास कहते हैं, फंक्शनल मॉर्फीम्स कहते हैं. नेक्स्ट है बाउंड मॉर्फीज. बाउंड मॉर्फीज क्या होती हैं? These are affixes that must be attached to the word. तो इसमें affixes होती हैं जो अटैच की जाती हैं वर्ड्स के साथ. affixes क्या होते हैं? प्रीफिक्स होता है किसी वर्ड से पहले कुछ जोड़ देना. जैसे क्लीन था, मैंने उससे पहले प्रीफिक्स लगा के अनक्लीन बना दिया. इनफिक्स था, उसमें इंसर्ट किया जाता है वर्ड. अब नाउ डेज के अंदर मैंने ए लगा के नाउ डेज बन गया, जैसे कि अंडरलाइन किया होगा ये, तो इसको हम इनफिक्स कहेंगे. और सफिक्स क्या होता है? किसी वर्ड के एंड पे कुछ लगाना. जैसे वर्ड एडजस्ट था तो उसमें आगे मैंने MENT लगा के एडजस्टमेंट बना दिया, तो ये सफिक्स है. इनफिक्स है मिडल वाला, और द फर्स्ट वन इज प्रीफिक्स. And the bound morphemes have also two categories, inflectional and derivational morpheme. So पहला क्या होता है? inflectional होता है, और दूसरा है derivational होता है morphemes. फर्दर हम इसको पढ़ते हैं.
कुछ और मैं फर्दर भी आपको बताता चलूँ आगे। जो दो कैटेगरीज होती हैं, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ एफिक्स की भी दो कैटेगरीज होती हैं। एक होता है डायरेवेशनल एंड इन्फ्लेक्शनल, एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू दैट derivational effects are added to morphemes to the form new words that may or may not be the same part of speech, and inflectional effects are added to the end of an existing word for purely grammatical reasons. In English, there are only 8 total inflectional affix, right? अब ये डाइवेशनल मॉर्फीम में बताता हूँ कि चेंज द पार्ट ऑफ स्पीच द वर्ड व्हेन एडेड टू द फ्री मॉर्फीम, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। तो वो कहता है जब कोई नया वर्ड ऐड किया जाता है तो पार्ट ऑफ स्पीच जो है उसको चेंज कर देता है जब भी कोई नया वर्ड ऐड किया जाता है मॉर्फीम में, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं उसमें नहीं होता। एग्जाम्पल ऑफ क्लास चेंजिंग, जैसे कि पे वर्ब है तो फिर उसके बाद पेमेंट बनाएंगे उससे तो वो नाउन बन जाएगा। देखिए वो पार्ट ऑफ स्पीच उसने चेंज कर दिया जैसे ही हमने वर्ड ऐड किया। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, पे जो था वो वर्ब है और जैसे ही मैंने उसको वर्ड और ऐड किया MENT तो वो नाउन बन गया। जैसे पे है ये वर्ब है और जैसे मैंने ER ऐड किया पेयर बना तो ये नाउन बन गया। तो डेरिवेशनल मॉर्फीम्स में ये कॉन्सेप्ट आप लें कि जब मैं कोई और वर्ड ऐड करूंगा उसमें तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ वर्ब था वो नाउन में बदल गया। तो फर्दर आप एग्जांपल लें, एग्जांपल ऑफ क्लास मेंटेनिंग। तो पिंक जो है एडजेक्टिव है, एंड पिंकिश भी एडजेक्टिव है। अब डू जो है वर्ब है और आगे मैंने उसके ऊपर प्रीफिक्स लगा के अनडू बनाया वो भी वर्ब है। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं डेरिवेशनल में कि कभी वो पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करता है और कभी नहीं करता। नीचे वाले में आप देखेंगे दोनों ही एडजेक्टिव हैं और दोनों ही वर्ब हैं। तो कुछ मैं आपको लिस्ट आपको बताता हूँ कि कौन कौन से वर्ड हैं जो इन्फ्लेक्शनल एफिक्स होती हैं। 8 होती हैं सिर्फ इन्फ्लेक्शनल एफिक्स इसमें। पहले थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, जैसे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाते हैं थर्ड पर्सन के साथ एस का इजाफा, जैसे शी वेट्स, शी वांट्स, ही गेट्स। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट में एस जो होता है ये इन्फ्लेक्शनल एफिक्स होता है। तो दूसरा क्या होता है, पास्ट टेंस ईडी जब लगाते हैं, ही वॉक्ड, ही जंप्ड, आई जंप्ड, तो ये इन्फ्लेक्शनल प्रीफिक्स है। और आगे प्रोग्रेसिव होता है ING, तो उसमें शी इज वॉचिंग, तो ये भी इन्फ्लेक्शनल है। एंड नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल EN, शी हैज ईटन, ही हैज ईटन, तो ये भी इन्फ्लेक्शनल एफिक्स है। नेक्स्ट है प्लूरल, 3 टेबल्स फलां, ये एस जो लगाते हैं एंड पे इसको भी। और पोजेसिव होता है जैसे कि एस अपॉस्ट्रोफी लगा के करते हैं, होली इज कैट। एंड नेक्स्ट है कंपैरेटिव, ER के साथ, यू आर टॉलर, यू आर थिनर। और नेक्स्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री, EST जब लगाते हैं, यू आर द टॉलेस्ट, यू आर द बेस्ट। ये सारे इन्फ्लेक्शनल एफिक्स हैं। होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एंड लिस्ट ऑफ डेरिवेशनल मॉर्फीम्स क्या है। डेरिवेशनल मॉर्फीम्स में प्रीफिक्स जो होती हैं RE, PRE, UN, EX, MIC, CO, ETC, और सफिक्स में क्या होता है ISH, LE, SS, LY, ES। ये सारे जो हैं वो लिस्ट हैं डेरिवेशनल मॉर्फीम्स की। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम जो अभी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 8 होती हैं इन्फ्लेक्शुअल मॉर्फीम्स, जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस, प्रोग्रेसिव, पास्ट पार्टिसिपल, प्लूरल, पोजेसिव, कोऑपरेटिव, सुपरलेटिव, ये सारे इन्फ्लेक्शुअल मॉर्फीम्स होती हैं। So morphemes that are used to indicate aspects of the grammatical function of a word.
तो ऐसे मॉर्फीम्स जो यूज़ किए जाते हैं, इंडिकेट किया जाता है दूसरे पहलुओं को ग्रामेटिकल फंक्शंस में। जैसा कि एग्जांपल बॉयज, बॉयज, क्लीन्ड, क्लीनिंग, क्लीन्स, टेकन, सिंपलेस्ट, हैवियर। तो आप इसमें देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल में इसमें पोजेशन आया है, और उसके बाद आप नेक्स्ट देख सकेंगे ये थर्ड पर्सन सिंगुलर आया है। फिर आप देख सकेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल आया है, फिर उसके बाद प्रोग्रेसिव आया है, सारे इसमें कंपैरेटिव आया है, सारा कुछ, सारे जो आपको मैंने बताए हैं सारे ये रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट लिस्ट ऑफ इन्फ्लुएंशियल मॉर्फीम्स। In the English we have 8 intellectual morphemes: noun, possessive noun, plural forms, verb third person singular, progressive verb, and eng past tense, ed past participle, an adjective, comparative, ar superlative, etc. ये जो आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, सारे यही मॉर्फेम्स इन्फ्लुएंशियल मॉर्फेम्स हैं। Sorry for the pause. I had to uh, plug my laptop to the charger. I'm sorry for that pause. So I'm repeating that again. List of inflection morphemes के क्या क्या होते हैं: noun, possessive noun, plural form, third verb, singular, progressive, ing, past tense, participle, adjective, operative, comparative, superlative। ये लिस्ट है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फेम्स की। होपफुली आप समझ रहे हैं, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग। कॉन्ट्रैक्टिबल मॉर्फेम्स। कॉन्ट्रैक्टिबल मॉर्फेम्स क्या होते हैं? थोड़ा सा और भी आपको बताता चलूं, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, आपका पॉइंट निकल जाएगा कि द अदर टाइप ऑफ बाउंड मॉर्फेम्स आर कॉल्ड बाउंड रूट्स। तो कुछ ऐसे बाउंड मॉर्फेम्स होते हैं जिनको बाउंड रूट्स भी कहते हैं। ऑब्वियसली मैं आई present that word bound roots in the paper, you will get confused यार ये क्या है। Alright, so these are morphemes and not affix that must be attached to another morpheme and do not have meaning of their own. Some example are receive in perceive and minute in submit। English morphemes free में जब ओपन क्लास और क्लोज क्लास होती है, बाउंड में अफिक्स, डाइवेशन और इन्फेक्शन होते हैं, और रूट्स में क्या होता है, देयर आर 6 ways टू फॉर्म न्यू वर्ड्स। कंपाउंड आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। आगे मैं आपको फिर थोड़ा और बताऊंगा आगे। कॉन्ट्रैक्टिबल मॉर्फीम्स, दे आर एक्सिलरी मॉडल सच एज विल, शैल, हैज, हैव, हैड एंड वुड। These can be contracted in formal style of language। तो contractible मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं कि उसको शॉर्ट करके जो लिखा जाता है वो उसको contraction कहते हैं, उसको contractible morphemes कहते हैं। एक वर्ड को शॉर्ट करके लिखा जाए, जैसे I will को I'll कह देते हैं, जैसे they had को they had इस तरह लिख देते हैं, तो इसको contractions कहते हैं। उसको स्मॉलर पार्ट में लिखना contractible morphemes होता है। नेक्स्ट है रूट एंड स्टेम। Root words are the basic part of a word that carries meaning.
A word that carries meaning. Stem is when a root morpheme is combined with affix morpheme. So root words ऐसे होते हैं जो बेसिक पार्ट ऑफ अ वर्ड होते हैं जो मीनिंग को लेके आगे चलते हैं. नेक्स्ट स्टेम इज व्हेन अ रूट मॉर्फीम इज कंबाइंड विद अफिक्स मॉर्फीम. तो स्टेम क्या होते हैं जिसको रूट वर्ड के साथ मिलके अफिक्स बनते हैं तो फिर वो नया लफ्ज बनता है. रूट जैसे कि टीच और एफिक्स उसके साथ मैंने अटैच किया ER. सो स्टेम क्या बन गया टीचर. सो ये बहुत मेहनत से मैंने ये बनाई है. बेहतरीन सारा कुछ समझाने का वे है. होपफुली यू विल गेट ऑल द पॉइंट्स कि रूट और स्टेम में क्या फ़र्क होता है. रूट जो है वो सिमिलर एक मीनिंग लेके चलता है और जो स्टेम होता है उसका एफिक्स ऐड करके एक न्यू वर्ड बनता है उसको फिर स्टेम कहते हैं. बाउंड रूट. These are two morphemes which cannot appear on its own. तो दो बाउंड रूट हैं जो कि अपने आप स्टैंड नहीं कर पाते. Receive, dis, shoot, dissuade. So बाउंड मॉर्फेम्स हैं. देखें आप ये जो सुएट है एंड पे ये बाउंड रूट है और जो डिस जो है वो बाउंड मॉर्फीम है और री जो है ये बाउंड है और सीव जो एंड में है वो बाउंड रूट है. होपफुली ये आपको थोड़ा क्लियरली आप देखेंगे तो इसको आप समझ पाएंगे बेहतर तरीके से. एंड बैक फॉर्मेशन में आपको थोड़ा लेके जाता हूं कि व्हाट इज मिस्टेकनली कंसिडर्ड टू बी एन एफिक्स. Abbreviations or clipping are shortening longer words. Eponyms are created from proper nouns, names, and blending is combining part of words into one. Compound, doghouse, acronym MBA National Basketball Association जैसे का और scuba self-contained underwater breathing apparatus. So back formation के edit to the editor है, abbreviations हैं, eponym है, blending है, ये सारी चीजें इसमें ऐड की जाती हैं. सो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा. समथिंग वर्ड्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मॉर्फीम्स. एग्जांपल पेमेंट जो है रीपेमेंट. अब री जो है प्रीफिक्स है, पे जो है वो रूट है और MENT जो है सफिक्स है. सो रूट के साथ जब प्रीफिक्स लगेगा एफिक्स लगेगा तो फिर ये स्टेम बनेगा. तो आपको ये एग्जांपल क्लियरली बताई गई है. नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन. मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन अब इसमें क्या है द डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेक्शनल एंड डेरिवेशनल मॉर्फीम. तो इस दोनों में फर्क क्या. इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स नेवर चेंज द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड. जो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम जो है वो कभी भी ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज नहीं करता. ओल्ड ओल्डर ये एडजेक्टिव हो गए, दोनों ही एडजेक्टिव. तो अगर ये डेरिवेशनल होता तो फिर ये उसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो चेंज कर देता. व्हाइल डेरिवेशनल मॉर्फीम कैन चेंज द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ अ वर्ड. जैसे कि आप बता रहे हैं यहाँ पे. जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन क्या है. आइडेंटिफाई द मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेंटेंस ब्लू. अब इसका मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस आपने बताना है मुझे. The quick brown fox jumps over the lazy dog. तो उसको मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन आपने मुझे बतानी है. तो समिंग अप करेंगे. मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर एंड वर्ड फॉर्मेशन. जैसे कि आपको बता चुका मॉर्फोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ वर्ड है, उसका स्ट्रक्चर है और उसका फॉर्मेशन है. The smallest meaningful part of the word is called morpheme. जो smallest सबसे part होता है किसी word का उसे morpheme कहते हैं. The morphemes have two classifications. There are free and bound morphemes. free जो दो आगे further types हैं morphemes की. So there are free and bound morphemes. एक free होता है एक bound होता है. उसको free class कहते हैं, उसको closed class कहते हैं जैसे हम पहले बता चुके हैं. And free morphemes categories are lexical and functional morphemes. Free morphemes को further दो categories में रखा गया है, एक lexical है और functional है. And bound morphemes जो है उसको includes किया गया है inflectional में and derivational morphemes में.
So we have all that study already, and I have worked hard on that lecture because that is very important. This lecture is very important regarding your exams and your study and your degree as well. This is very important topic. I want everybody to learn that and focus on that and study hard on that. And I will ask question about this lecture as well, because this is very important for your exams as well, and I'm repeating them, telling them again and time again that this is very important. Thank you very much for your cooperation. Thank you everybody.